जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है सी रूपक मिगलानी। मेरे दोस्तों, मेरा नाम है रूपक मिगलानी और आप सभी के समक्ष मैं प्रस्तुत हो गया हूँ एक और नया वीडियो लेके। मेरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या डोनेशन टैक्सेबल होता है क्या जीएसटी में। डोनेशन गिवन टू द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वेदर taxable or not under the GST. We're going to understand about this. So let's proceed further without wasting any single minute, my dear friends. So let's move. So friends, before we proceed further, let me tell you that Unacademy have come up with wonderful batch that is a Yodha batch. Yes, my dear friends, this is one of the another Yodha batch that is started from 22nd of December. And this batch has been specifically designed for the CA inter aspirants who all are appearing in May 2021. Alright, my dear friends. And what are the benefits of this Yodha batch? My dear friends, under this Yodha batch, you would be interacting with the top-notch educators from all over India. Alright, followed by weekly quiz, concept testing, alright, and a doubt clearing sessions, alright. And whatever the problem or doubt you come across, you would be interacting with the top-notch educators and you would be solving in a real-time basis. Alright, my dear friends, so get ready for this wonderful batch. And if you have not subscribed yet, you can subscribe to the Plus subscription for availing this amazing benefits of Yodha batch and for availing the amazing discounts, my dear friends. You can apply to the given below coupon code. Alright, my dear friends. So friends, whether donation is, as you can see it in the slide, whether donation is taxable under the GST or not. All right, my dear friends, तो taxable event donation होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में चर्चा करना है आज पूरे वीडियो में। तो दोस्तों, डोनेशन के बारे में बात करने से पहले एक बार वापस से रिकैप कर ले और समझ ले कि भाई साहब जीएसटी में एक्चुअल में टैक्सेबल इवेंट क्या होता है। What is a taxable event under the GST? My dear friends, as far as GST is concerned and taxable event under the GST is concerned, the taxable event is supply. Yes, my dear friends, we have understood this under section 7 of the CGST Act. और उसके 3 essential elements मेरे दोस्तों, 3 essential elements. All right, what are those, my dear friends? First of all, there has to be some goods or services. ऐसी एक्टिविटी जो रिजल्ट कर रही है गुड्स और सर्विसेज में। और गुड्स और सर्विसेज क्या होते हैं मेरे दोस्तों, ये सब हमने डेफिनेशन में देखा था, ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 फॉर गुड्स। बिजनेस क्या होता है ये भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। बिजनेस एक बार करो, अनेक बार करो, डजंट मैटर, कंटिन्यूटी डजंट मैटर, वॉल्यूम डजंट मैटर, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन बिजनेस। It's a broad definition, it's an inclusive definition, and as far as the inclusive definition is concerned, the coverage of the same is very wide, and my dear friends, all right. Thirdly, my dear friends, the essential element was consideration. Yes, consideration मतलब क्या? अरे something in return. Yes, ये हो सकता है मनी में भी, काइंड में भी, ऑल राइट, ये दोनों प्रकार के कंसिडरेशन हो सकते हैं। और एक और चीज, बहुत महत्वपूर्ण चीज जो हम समझे थे मेरे दोस्तों कंसिडरेशन में, मनी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबिडेंस के बारे में भी मेरे दोस्तों हमने ये कंसिडरेशन में समझा था। ऑल राइट, तो ये मुख्य चर्चा हुई थी मेरे दोस्तों सप्लाई की, और सप्लाई के 3 एसेंशियल एलिमेंट, गुड्स और सर्विसेज, बिजनेस एंड कंसिडरेशन। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई साहब यहाँ पे डोनेशन जो है वो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा अंडर जीएसटी। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे डिबेटेबल इशू जो निकल के आएगा वो ये होगा, क्या डोनेशन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को arise करता है, whether it gives rise to any kind of a furtherance of business if donation is given to some charitable organization. Let's understand. मेरे दोस्तों, इस चीज को क्लियर करने के लिए डिपार्टमेंट ने, हमारे डिपार्टमेंट, यस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर नंबर। सर्कुलर लाया गया मेरे दोस्तों विशेष तौर पर, और जिसका सर्कुलर नंबर है 116/35/2019। ऑल राइट, डेटेड 11 अक्टूबर 2019। हाँ मेरे दोस्तों, 11 अक्टूबर 2019 को ये चीज क्लेरिफाई की गई विद द हेल्प ऑफ अ सर्कुलर whether donation given to the charitable organization will be taxable or not। और मेरे दोस्तों, इस सर्कुलर में क्या लिखा गया, क्या समझाया गया, लेट्स अंडरस्टैंड। मेरे दोस्तों, इस सर्कुलर में बताया गया कि डोनेशन के भाई साहब 2 पर्पस हो सकते हैं। क्या डोनेशन का पर्पस हो सकता है कि भाई बिजनेस प्रमोशन करने के लिए आप डोनेशन दे रहे हैं, ठीक है, और दूसरा पर्पस हो सकता है फिलैंथ्रोपिक। ऑलराइट, इसका मतलब होता है सेवा भाव, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति
है जो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए डोनेशन दे रहा है, दूसरा व्यक्ति है जो सेवा भाव, ही इज वेरी काइंड हार्टेड, ही इज जस्ट डोनेटिंग इट एनोनिमसली, यू नो, आई मीन टू से कि वो सेवा भाव के मकसद से डोनेट कर रहा है, उसका और कोई बिजनेस का पर्पस नहीं है। चलिए इस चीज को एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं मेरे दोस्तों। ये देखिए एग्जाम्पल फॉर बिजनेस प्रमोशन। मेरे दोस्तों राजू है, ठीक है, राजू ने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट किया 51,000 मेरे दोस्तों राजू ने डोनेट किया, ठीक है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, और जिसके बदले सिटिंग बेंच बनाई गई वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, देख सकते हैं। और मेरे दोस्तों चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में वो सिटिंग बेंच में लिखवा दिया कि भाई साहब ये दिया हुआ गया है राजू द्वारा, और नीचे लिख दिया गया इसकी बिजनेस वेबसाइट का नाम, बिजनेस वेबसाइट, यूट्यूब के लिंक्स, भाई साहब अपने यूट्यूब में भी वीडियोस बनाते हैं जो कि बिजनेस प्रमोशन रहते हैं, तो ये लिंक भी दे दी, वेबसाइट का नाम भी दे दिया, ठीक है, अपने ऑफिस का एड्रेस भी दे दिया, और वहां पे लिख दिया कि भाई साहब अगर आपको पसंद आए चीज, अगर आप आते हैं हमारा डेमो देखना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट वो बेचता होगा, तो उसने वहां पे एड्रेस लिख दिया, अपना नाम नंबर सब कुछ दे दिया। तो मेरे दोस्तों मेरे को एक चीज बताओ, चले सेकंड एग्जांपल लेते हैं, फिर आपसे पूछूंगा मेरे दोस्तों कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों एग्जांपल में। सेकंड एग्जांपल माय डियर फ्रेंड्स, वही राजू है कि फिलैंथ्रोपिक का हम देख रहे हैं, फिलैंथ्रोपिक मतलब आई टोल्ड यू सेवा भाव, ऑल राइट माय डियर फ्रेंड्स, यस मेरे दोस्तों वापस से वही राजू, वापस से वही चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे डोनेट हो रही है 51,000, यस बाय मिस्टर राजू, ऑल राइट, राजू बन गया जेंटलमैन, इतना पैसा आ गया मेरे दोस्तों। सिटिंग बेंच बनवाई वापस से चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने राजू के दिए हुए पैसों से, पैसे, इज इट क्लियर? और इस सिटिंग बेंच में सिर्फ ये लिखा गया कि डोनेटेड बाय मिस्टर राजू, ये ग्रेटिट्यूड मैसेज लिखा गया, एक सिंपल सा ग्रेटिट्यूड मैसेज लिखा गया कि भाई डोनेटेड बाय मिस्टर राजू एंड थैंक्स आर टर्न टू मिस्टर राजू। Only these things were described in this bench, but nothing like, you know, any kind of a business website or any kind of a business promotion information was not given in this sitting bench. So my dear friends, this is one example, and this is second example. So if I differentiate between both of them, you know, what we can conclude is that in the first example, in this example my dear friends, what is happening? There is a business promotion, isn't it? All the business information had been given in the sitting bench, all right? जो पैसे से वो सिटिंग बेंच बनी है, वो सिटिंग बेंच में सारी बिजनेस इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, भाई साहब की वेबसाइट दे दी गई, यूट्यूब की लिंक दे दी गई है, और वहां पे ये भी लिख दिया गया कि भाई साहब अगर आपको आना है डेमो देखना हमारे प्रोडक्ट का, सर्विसेज का, जो भी वो बेचता होगा राजू, तो वहां पे एक एड्रेस दे दिया गया, वहां पे विजिट करो। तो मेरे दोस्तों ये बिजनेस प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ? यस, इट इज अ बिजनेस प्रमोशन, और ये चीज को डिस्क्राइब किया गया हमारे सर्कुलर में, ये सर्कुलर नंबर 116/35/2019, 116/35/2019 के सर्कुलर में ये चीज डिस्क्राइब की गई, और इसे बताया गया कि भाई साहब ये जो है, ये डोनेशन जो है ये बिजनेस प्रमोशन में रिजल्ट कर रहा, और ये क्या होगा? ये होगा सप्लाई, और मेरे दोस्तों सप्लाई हो गया तो क्या हो गया? टैक्सेबल इवेंट हो गया। टैक्सेबल इवेंट हो गया तो क्या हो गया? जीएसटी की लायबिलिटी टू पे टैक्स हैज बीन अरोज्ड माय डियर फ्रेंड्स, यस, चार्ज गेट्स क्रिएटेड। सेकंड एग्जांपल में मेरे दोस्तों सर्कल में बताया गया कि भाई साहब यहाँ पे कोई बिजनेस प्रमोशन नहीं है, पर्पस जो वर्ड यूज किया गया ना, फिलैंथ्रोपिक, ये वर्ड यूज किया गया जिसका मतलब होता है सेवा भाव। अगर सेवा भाव के मकसद से अगर ये डोनेट की गई ये चीजें और उसके बदले कुछ बन रहा है, तो मेरे दोस्तों ये जो है ये सप्लाई नहीं है, टैक्सेबल इवेंट ये नहीं होगा, और इस पे चार्ज भी क्रिएट नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों ये दो मुख्य बातें की गई थी डोनेशन में, ठीक है। तो अगर मैं इसे कंक्लूड करना चाहूं मेरे दोस्तों, तो आपको ये समझना होगा कि भाई साहब डोनेशन टैक्सेबल है कि नहीं है, तो आप क्या जवाब देंगे? डिपेंड्स। वो फिलैंथ्रोपिक पर्पस है कि बिजनेस प्रमोशन पर्पस है? बिजनेस प्रमोशन पर्पस रहा तो मेरे दोस्तों वो क्या है? टैक्सेबल है। फिलैंथ्रोपिक सेवा भाव है तो मेरे दोस्तों ऊपर वाला भी देख रहा है, ठीक है, और ये डिपार्टमेंट भी जानता है, तो जीएसटी नहीं लगेगा कुल मिला के। यस, तो ये देखिए व्हाट डज इट सेज, GST is not levied where all the following three conditions are satisfied, namely कोई गिफ्ट या डोनेशन किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को किया जा रहा है, और पेमेंट जो है इसका कैरेक्टर डोनेशन है, और डोनेशन का कैरेक्टर है, ये कैसा पता चल रहा है? ये फिलैंथ्रोपिक पर्पस अगर है, दैट इज which leads to no commercial gain and no advertisement but सेवा भाव मेरे दोस्तों, काइंड हार्टेड पर्सन। yes or no my dear friends?
ऑल राइट सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट दी डोनेशन। क्या डोनेशन टैक्सेबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है जीएसटी में, ये हमने समझा सर्कुलर के माध्यम से, जो कि डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन लाया डोनेशन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो एंड यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स अबाउट द डोनेशन। सो लेट्स मीट अप इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद मेरे दोस्तों।